أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارا جو اس بار کا ٹاپک ہے وہ ہمارا نفس کے بارے میں ہے. نفس مین جینڈر. جینڈر دو طرح کے ہیں. That's it's male and female. Like نر اور مادہ. یہ مادہ نر. ٹھیک. اسی کو ہم اگر کہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں مذکر اور اس کو بولتے ہیں مؤنث. ٹھیک ہے. اب یہ مذکر نر اور مادہ میں ایک حقیقی نر اور مادہ ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی، لڑکا لڑکی، گائے بھینس. گائے بھینس. ٹھیک ہے. یہ دو کیٹیگری ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے. یہ ہے حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث. اس کے علاوہ حقیقت میں جو نیم ہوتے ہیں جو کہ ہم میل کے لیے اینڈ فیمیل کے لیے بولتے ہیں، وہ بھی ہماری حقیقت میں ان کے نیم آتے ہیں. جیسے اگر مؤنث نیم ہے زینب تو یہ بھی مؤنث ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے مؤنث کی، لیکن یہ نیم ہے، ہمیں پتہ ہے حقیقت میں یہ نیم ہے. اسی طرح مذکر نیم ہے معاویہ، حضرت معاویہ علیہ السلام. معاویہ تو ہمیں پتہ ہے اٹس تا مربوطہ کے باوجود بھی یہ مذکر ہے. اوکے. حقیقت میں جن کی نر مادہ موجود ہو یا جن کے نیمز ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیمیل نیمز ہیں اینڈ میل نیمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے حقیقت میں مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں. کچھ غیر حقیقی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. یہ حقیقی تھے اور کچھ غیر حقیقی ہوتے ہیں. اب غیر حقیقی مذکر میں جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے مؤنث کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مؤنث کی وہ کیٹیگری جو نہیں آتی ہم اس کو، جو مؤنث کی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتے وہ اس کو ہم مذکر میں فٹ کر دیتے ہیں. اب غیر حقیقی اگر ہم مؤنث کو چیک کریں تو اس کے اندر دو ہیں. ایک تو قیاسی ہے، قیاس کیا جاتا ہے، اور ایک ہے سمائی، یہ ہم نے سنا ہوا ہے عربوں سے کہ وہ ایسے. عربک گرامر کے اندر قیاس میں مربوطہ، الف ممدودہ، الف مقصورہ، اور اس کے علاوہ جمع مکسر کے کچھ صیغے بھی ہم اس کے اندر لے کر آتے ہیں جو قیاس کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ بھی فٹ کریں. اس میں جمع مکسر کے کچھ صیغے آتے ہیں، اور اگر ہم قیاس کریں تو ملکوں اور شہروں کے نام، ملکوں شہروں کے نام. ٹھیک. یہ 5 چیزیں ہم قیاس میں کر لیتے ہیں اور 5 چیزیں ہم سمائی میں کرتے ہیں. سمائی میں ہم نے سنا ہوا ہے ہوا کے نام، جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں، تمام ہواؤں کے نام، جیسے کہ ریحٌ، وہ ہمارا مؤنث ہے. اور پھر دوزخ کے نام جیسے جہنم، اور ایسے ہی شراب کے نام جیسے خمر، اور تمام شراب کے نام، دوزخ کے نام، ہواؤں کے نام، اور دوہرائے اجزائے بدن. جیسے کہ کان، آنکھیں، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں. یدن ہاتھ، اگر ہم کہیں تو رائز جو ہمارے جسم کے اندر 2 ہیں. جیسے اگر ہمارا ناک ایک ہے، گردن ایک ہے، تو وہ ہمارا مذکر میں چلا گیا. جو 2 ہیں وہ ہمارے اس میں چلے گئے مؤنث میں. اور اس کے علاوہ ایک متفرق سمائی ہوتے ہیں، متفرق اسمائی، جس کو ہم نے ایک کہانی کے اندر ان تمام
अल्फाज को जोड़ लिए। वो कहानी है जो अभी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ, उसके अंदर इस तमाम अस्मा को हमने जोड़ लिया। सबसे पहले हमने कियास किया ता मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, कुछ जमा मुकस्सर के सीगे हैं, और मुल्क और शहरों के नाम, फिर समाई में हवा के नाम, दोज़ख के नाम, शराब के नाम, दुराया ज़ेबदन, और कहानी। एक कहानी है जो हमने बनानी है। ये गैर हकीकी मोनस की सारी डिटेल। सबसे पहले हम समाई कहानी पे करते हैं। समाई कहानी वो क्या है? ये कहानी एक ख्वाब पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर एक जंग होती है, हर्ब। उसके नतीजे में एक आसमान जो है, वो जंग जो है आसमान पे हो रही है, समाउन, और वहां पर एक सूरज जिसके नतीजे में वजूद में आता है, उस सूरज से निकलती है आग, और उस आग के पास यानी एक आदमी नफ्स खड़ा होता है। वो डर कर भागता है तो हवाओं से धकेलती हुई रिहुन, हवाओं से धकेलती हुई अर्जुन जमीन पर गिर जाती है। वहां से वो एक लाठी असा उठाता है, और दूर में वहां पर उसको एक कुआं नजर आता है, बियर। कुएं में वो डालता है, और उस रास्ते पर चलते हुए सभी ने, उस रास्ते पर चलते हुए वहां पर एक कुएं के पास जाकर उसको एक डोल नजर आता है, दलो, और डोल से वो निकालता है जो भी उसके अंदर है कुएं के, और उसके अंदर से निकलती है खमरुन, शराब। उस शराब को वो पानी ग्लास में डालता है, कासुन, और फिर जब वो उसको पीता है तो जहन्नम में चला जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो देखता है ये एक रोया कहानी है। रोया कहानी को कहते हैं, ख्वाब है। ठीक है। इस मुतफर्रिक को हमने जितने भी समाई कहानी के अंदर जोड़ दिया है। इसमें हर समाउन, शमसुन, नारुन, नफसुन। हाँ, दूर एक रिहुन हवाओं से धकेलती है, जमीन की तरफ एक असा उठाता है, और वहां पर उसको एक दारुन घर भी नजर आता है। उस घर के पास एक कुआं है, उस कुएं की रास्ते की तरफ वो दौड़ता है। वहां पर एक डोल मिलता है, डोल में से वो शराब निकालता है, उसे गिलास में डालता है, पीता है, और जहन्नम में चला जाता है। तो इस कहानी में जितने भी वर्ड यूज हुए सारे मोनस कैटेगरी के अंदर है। अब हमारे पास जब भी ये कहानी या जब भी ये अल्फाज आएंगे, हम जल्दी से समझ जाएंगे कि ये सारे के सारे मोनस अस्मा है हमारी कहानी। और सेकंड जो चीज थी हमारे पास, जिनके आखिर में तामरबूता आता है। एक कैटेगरी अगर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की दूं, वैसे आपके के हरूफे तहज्जी जो है वो भी हमारी मोनस है। उसके भी कुछ अल्फाज मोनस कैटेगरी में आते हैं। हरूफे आमला जैसे कि हरफे जर हैं, आला, मिन, ये भी सब मोनस कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, जिन्स के एतबार से। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब हम ये बात करते हैं मोनस हकीकी की। मोनस हकीकी दो कैटेगरी थी हमारे पास। एक तो था उम्मुन माँ, जो कि हकीकत में जिनकी जिन्स मौजूद है, नर मादा मौजूद है, उम्मुन माँ। और फिर उसके अलावा उनके नेम, जैसे अगर माँ है तो उसका नाम है जैनब। ठीक है। ये हकीकत में हमें पता है कि माँ जो है मोनस है, और जैनब जो है वो भी मोनस है। ठीक है। अब ये तो हकीकत है। और गैर हकीकी में मोनस लफ्जी में हमारे पास मोनस लफ्जी में हमारे पास एक था ता मरबूता। इस ता मरबूता को हम तानीस की ता अगर कहें, तानीस की ता, तो इसके अंदर आ जाती है आयातुन, ये ता मरबूता, जन्नातुन, ठीक है, सातुन, घड़ियों को कहा जाता है। और फिर उसके बाद आबिद सिफ्त है तो हम लगा देते हैं, मुजक्कर के लिए जब सिफ्त आती है आबिद तो हम लगा देते हैं आबिदा।
आबिदात। ठीक है, तो ये हमारी तानीस की ता मरबूता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मुअन्नस है। इसके अलावा कुछ एक जमा की ता है, जमा की ता है, जैसे मलकुन एक फरिश्ते को कहा जाता है जब आता है मलाइका। जमा की ता आती है। और फिर उसके बाद हमारी आती है मस्तर की ता। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, मस्तर की ता, ये एक बाप पे आती है जिसमें हम कहते हैं आलिमातु, आलिमय्यतु। आलिमय्यतु। अब इसम जीन्स की ता आती है, इसम जीन्स अगर हो तो उसकी ता आती है, जैसे शजरुन है तो शजरतुन, एक वाहिद करने के लिए इसम जीन्स को। इसम जीन्स में मुजक्कर मोनस कैटेगरी एक ही होती है, ठीक है, लेकिन उसकी भी ता मरबूता एक आती है। और एक ताए वहदत आती है कि जैसे कि हमने ता करने के लिए हम कहते हैं कि ये अब जो वर्ड है तमरुन है, ये ज्यादा चीजों को बोला जाता है। जब हम एक को जाहिर करना हो, जैसे वाहिदातुन करना हो, तो उसके लिए तमरातुन, ता मरबूता लगा देते हैं, इसे कहते हैं ता वहदत। ठीक है, अब ये हमारी एक तो तानीस की ता है जिसमें सिफात भी बन जाती हैं सिर्फ में, जैसे मुस्लिम है मुस्लिमातुन, ता मरबूता कर दी। जमा में जमा के सीगे जब जब जाते हैं तो वो ता मरबूता आ जाती है। मस्दर की आ जाती है हमारे पास, मस्दर का एक वजन होता है। इसम जिन्स की आ जाती है, जिन्स जैसे मुजक्कर मोनस एक ही कैटेगरी है लेकिन उसमें बास में ता मरबूता के साथ वो वर्ड है। और एक ताए वहदत आती है जिसमें हम वाहिद को जमा करने के लिए हम एक ता लगाते हैं, जैसे तमरुन तमरातुन, तमरुन यानी बहुत ज्यादा और तमरातुन में एक चीज की निशानदेही की जा रही है। और इसके अलावा गिनती के दो चार ऐसे भी इसम है जिसके आखिर में ता आती है लेकिन वो मोनस नहीं है बल्कि मुजक्कर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह दूं हकीकत में खलीफा, खलीफा तो ये मुजक्कर है। और मुबालगे में अगर हम कहते हैं, मुबालगे में कहते हैं कि इलामा साहब ने ये बात की, तो इलामा, इलामा, इलामतु, तो ये भी मुजक्कर है। ठीक है, ऐसी ता जिसमें हमें पता है कुछ मर्दों के नेम है, खलीफा, माविया, तलहा, ठीक है, वो हमारे मुजक्कर हैं। और जिसमें हमें पता है कि मुबालगे के तौर पर उन्हें कहा जाता है अलामा, आ, उनको दिया गया खिताब दिया गया, तो उसकी भी जो ता है लेकिन वो मुजक्कर कैटेगरी में आती है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास था, इसको हम कुछ मजीद और डिस्कस करते हैं टाइम और के अलावा। अब एक सेकंड कैटेगरी थी कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, अलिफ मकसूरा, इसका एक खास वजन होता है अलिफ मकसूरा का। अलिफ मकसूरा छोटा अलिफ ऐसे, जैसे लैला, ये नेम है किसी औरत का, ठीक है, लैला। उसके अलावा ये एक पैटर्न पे बनता बनता है जिसको कहते हैं फालाव। ये पैटर्न है जिसमें ये वाहिद मोनस का सीगा है, सॉरी, फूला, ये मबनी वर्ड है। और ये अलिफ मकसूरा इसको कहा जाता है, ये इस पैटर्न पे होता है। ठीक है, अब एक वर्ड है जिसमें मैं कहती हूँ जैसे कि तकवा, तकवातुन, ता मरबूता होती है ना उसकी, तकवातुन के तुम तकवा इख्तियार करो, ये उससे निकलती है ताम, ये वाहिद के लिए तकवा। हुस्ना, अहसनु, इसका मुजक्कर, हुस्ना इसकी मोनस। ठीक है,
हुस्ना, कुबड़ा, सुगरा, लैला, ये तो नेम है। और अब यहाँ पर सिफ्त आ गई। कुबड़ा छोटी है, बड़ी है, सुगरा बड़ी है, बड़ी के लिए कुबड़ा, छोटी के लिए सुगरा। और इसका एक पैटर्न होता है जो कि मैं मुजक्कर के लिए वो एक पैटर्न है अफआलू का वजन, और मोनस के लिए एक पैटर्न है जो कि फूला का एक वजन। इसकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो भी इसका पैटर्न बनता है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अफआलू और फूला पे हम बात करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा, हम अफआलू और फूला पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।